Good morning, students. In this video we are going to read the lesson 4 of computer, that is Introduction to MS Excel 2010. In this chapter we will read about getting started with MS Excel, means we will learn how to start MS Excel, components of MS Excel window, entering data in worksheet, opening an existing workbook and closing an workbook. Getting started with MS Excel 2010, we all know that when we will click on the start button on the taskbar, we will get the MS Excel 2010 icon here, or if we cannot find the icon, then we will write here in the search box MS Excel 2010, then it will appear here and then we will click on it. It will be started. This is the Excel interface. When we will click on MS Excel 2010, this screen will appear in the desktop. This screen will appear on the computer. This is the title bar. This is known as Quick Access Toolbar. Here it is the Help button. It is the File tab. This is called Ribbon, where we will find all the tabs and all the icons or formatting tools. This is the Active Cell, means wherever it is a dark black box, that means that cell is active cell, and any box is known as cell. Here you can see that there are many boxes. Each box is known as cell. This is the row header and this is column header. Here it is the zoom control, means if we will scroll the arrow toward left, then the size will become smaller, and if we scroll the arrow toward right, then the size will become greater. This is the view buttons, and here are 3 sheets and default, and we can add sheet by clicking on this, and the default name is sheet 1, sheet 2 and sheet 3, and this is the status bar. Now components of MS Excel window. First is workbook. Any MS Excel file is known as workbook, means whatever file we made on MS Excel, it is known as workbook. It consists of 3 worksheets, and worksheet is horizontal row and columns that is used for work on the data. There are 10,48,576 rows and 16,384 columns. Then next is cell. I told you that each box here is known as cell. Small rectangular area is known as cell, and each cell has a name. Like here, this is the active cell and its name is A1. A1 is written here. This is the cell name box. We can shift cells by pressing the arrow keys on the keyboard. Next is active cell. The dark black border on any cell is known as active cell, मीन्स किसी भी सेल में अगर ब्लैक कलर का डार्क बॉक्स है तो वो एक्टिव सेल है. नेक्स्ट इज रो. रो इज अ ग्रुप ऑफ सेल that run from left to right of the page. Yeah, this is a row, means it is left to right in a page, that means it is a row. There are 10,48,576 rows. Next is column. Column means top to bottom. This is a column. This is a column. There are 16,384 columns, and
rows are named as numbers and columns are named by letters, alphabets. It is from A to X, F, D. Here it is up to J. After that it is K, and after Z it will be AA, then AB. Likewise it goes to X, F, D. Next is name. It refers to the active cell name. That means in the example here, this is the name. एक्टिव सेल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, इसको नेम कहते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार में एक्टिव सेल में अगर कोई भी फॉर्मूला अगर हम लोग डाले हुए हैं तो वो फॉर्मूला बार में दिखता है. यहाँ पर ये है फॉर्मूला बार. अगर कोई भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कोई भी यहाँ सेल में तो ये यहाँ पर डिस्प्ले होता है. नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार देखिए यहाँ पर है, ये भी एक स्क्रॉल बार है और ये भी स्क्रॉल बार है. इससे हम लोग रो को शिफ्ट करते हैं और इससे हम लोग कॉलम को शिफ्ट करते हैं. इसको जब नीचे लाते हैं तो ये नीचे आते जाता है. जितना नीचे तक आता है तो ये नंबर्स को ऊपर करने के लिए इसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं, तो इसको हम लोग स्क्रॉल बार कहते हैं. नेक्स्ट इज सीट पर टैब. सीट टैब क्या होता है? सीट का जो चेंज करने का टैब है, यहाँ से हम लोग सीट 2 में अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सीट 2 वाला टैब में पेज ओपन हो जाएगा, सीट 1 वाला छुप जाएगा. तो ये टैब है जिससे हम लोग सीट को शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. जो हम लोग चाहते हैं सीट को ओपन करना वो सीट ओपन होगा. इसका हम लोग नेम भी चेंज कर सकते हैं. उस सीट नेम में हम लोग क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो वहाँ पर हम लोग को ऑप्शन आएगा रीनेम का, तो हम लोग वहाँ पे टाइप कर देंगे नेम. फिर है व्यू बटन. व्यू बटन क्या है कि कौन से व्यू में हम पेज को देखना चाहते हैं. नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू या फिर पेज ब्रेक व्यू. जिस तरह का भी व्यू हम लोग चाहते हैं यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं. फिर है जूम कंट्रोल. जूम कंट्रोल बटन क्या होता है कि हम लोग को स्क्रीन में ये सेल्स को कितना जूम रखना है, कितना छोटा करना है, कितना बड़ा रखना है, वो हम लोग यहाँ पे जूम बटन है उससे हम लोग कर सकते हैं. जो स्लाइडर है उसको ड्रैग करेंगे लेफ़्ट की तरफ तो वो छोटा होते जाएगा, राइट की तरफ अगर करेंगे तो वो जूम होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एंटरिंग डाटा इन वर्कशीट. वर्कशीट में हम लोग को कोई भी डाटा एंटर करना है तो उसके लिए हम लोग उस सेल में बस क्लिक करेंगे, उसके बाद टाइपिंग करेंगे और फिर नेक्स्ट से उसके नीचे वाले सेल में अगर लिखना है तो उसके लिए इंटर करेंगे तो वो नीचे वाले सेल पे आ जाता है पॉइंटर. जैसे कि यहाँ पर हम लोग बस इसमें क्लिक करेंगे बॉक्स में और लिखेंगे तो वो लिखा जाता है. अब यहाँ पर बीना सिंह लिखने के बाद इंटर दबाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा एक्टिव सेल. फिर हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो वो नीचे वाले सेल पे आ जाएगा. फिर है मूविंग अराउंड एक्सेल सीट. एक्सेल सीट में ये जो हम लोग का कीबोर्ड में एरो की होता है उससे हम लोग सेल्स को लेफ़्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं. अगर एक सेल ऊपर जाना है तो ऊपर वाला एरो की प्रेस करेंगे, अगर नीचे जाना है तो नीचे वाला एरो की प्रेस करेंगे या फिर इंटर दबाएंगे. लेफ़्ट साइड का सेल में अगर हम लोग को जाना है तो लेफ़्ट साइड वाला एरो की प्रेस करेंगे या फिर शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे. अगर हमें राइट साइड वाले सेल में जाना है तो राइट साइड वाला एरो प्रेस करेंगे या फिर टैब दबाएंगे. टॉप ऑफ द वर्कशीट. वर्कशीट के एकदम टॉप में जाना है, मीन्स सेल A1 में जाना है, सबसे ऊपर सबसे पहला कोना वाला. तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे. एंड ऑफ द वर्कशीट. लास्ट कंटेनिंग डाटा, मीन्स डाटा जिसमें है वहाँ का लास्ट सेल. जैसे कि इस टेबल में लास्ट सेल है 3. कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे. एंड ऑफ द रो तो हम लोग क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो. फिर है
एंड ऑफ कॉलम, कॉलम के एंड में जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे। फिर वन पेज अप, एक पेज ऊपर जाएंगे तो पेज अप बटन दबाएंगे, और पेज डाउन अगर करना है तो फिर पेज डाउन वाला बटन दबाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अंडू चेंजेस। अंडू का मतलब होता है कि जो हम लोग लास्ट काम किए हैं उसको हटाना। तो उसके लिए यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में शॉर्टकट दिया हुआ है, ये जो एरो है ये अंडू का है, इसमें क्लिक करेंगे तो हम लोग का जो लास्ट काम हम लोग लास्ट टाइपिंग या फिर लास्ट चेंज किए हैं जो कुछ भी वो मिट जाएगा, हट जाएगा। फिर है रीडू चेंजेस। रीडू करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार में ही है, ये एरो में क्लिक करेंगे तो जो हम लोग अभी लास्ट मिटाएं वो फिर से वापस आ जाएगा। फिर हम लोग का टॉपिक है सेविंग अ वर्कबुक। अब वर्कबुक को एक सेव करना है हम लोग को, तो कैसे करेंगे? पहले फाइल में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर सेव एज है, अगर हम लोग पहले सेव कर चुके हैं उसको तो फिर सेव में क्लिक करेंगे, और अगर फर्स्ट टाइम उसको सेव कर रहे हैं तो सेव एज में क्लिक करेंगे। सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें हम लोग फाइल का नाम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद सेव में क्लिक करेंगे तो हम लोग का फाइल जो है वो सेव हो जाएगा। फिर है ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग वर्कबुक। ओपन करने का तरीका क्या है? फाइल में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ओपन में क्लिक करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर फाइल को हम लोग यहाँ एरिया से, इस एरिया में लिखा सारा फाइल्स आ जाएगा, तो वहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग को बहुत सारा फाइल्स अगर यहाँ पर रहता है और नहीं मिल रहा तो यहाँ पे फाइल का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद ओपन में क्लिक करेंगे तो वो फाइल हम लोग का ओपन हो जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक है हम लोग का क्लोजिंग अ वर्कबुक एंड MS एक्सेल। एक वर्कबुक या फिर MS एक्सेल को बंद कैसे करते हैं, उसका भी प्रोसेस उसी तरह का है। फाइल में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। या फिर जो हम लोग का कोना में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन रहता है, तो इस क्लोज बटन में हम लोग क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा एक्सेल। इसका एक बंद करने का शॉर्टकट तरीका भी है, अगर हम लोग Alt F4 एक साथ दबाते हैं तो वो फिर बंद हो जाता है।